Hello students, welcome to Education House, the house of knowledge. Today we study concepts, theory, master questions. So guys, today we will study about Heron's formula. This is chapter number 12th of your NCERT book. So what is Heron's formula? To understand this, firstly we will understand some topics. How to calculate the area of different figures like square, rectangle or this triangle. So if we have a square with side A, we can calculate its area by side into side. Let A into A square. Similarly, if we have a rectangle, we can find it area A into B. It means length into breadth, and which will result in AB. In case of a triangle, which is right angle triangle having a 90-degree angle over here is known as right angle triangle. So in right angle triangle we use half base height. So these are the figures in which we had find area with the help of basic formulas. But in case if we have some figures like this in triangle where there is no 90-degree angle, neither the sides are equal, like in first triangle we have side A centimeter, B centimeter, C centimeter, and here we have X centimeter, Y centimeter and Z centimeter. So what we do here, how can we find area here? So there comes Sir Heron, mathematician, which gave us the solution of this problem. So solution is Heron's formula. This formula is very helpful to calculate area of any triangle with any sides and any angle between them. So what's that area? What's that formula? Formula of area of triangle by Heron's formula is under root S into S minus 1A, S minus B and S minus C. So what are S, A and B? Let us know about this. A, B, C are sides of a triangle. As in previous page we have seen that triangle with different sides A, B, C. So here's that A, B, C are different sides, and the S is semi-perimeter. Means we have a triangle, the sum of all its sides is known as perimeter, and when perimeter is divided by 2, A plus B plus C will result in a perimeter. Perimeter divided by 2 is semi-perimeter, which is denoted by small s, half of perimeter. So formula semi-perimeter into semi-perimeter minus A, it means first side, semi-perimeter minus B, semi-perimeter minus C. This formula is helpful where it is not possible to find height of triangle easily. Means this formula is not only for finding the area of complex figures but also to find height. How? We will study today. So we start applying Heron's formula. Find the area of triangle, two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter, and the perimeter is 32 centimeter. So firstly we will write formula on our notebook. You can do this yourself. Under root S minus A, S minus B and S minus C. After that we have to sum up all the sides and divide them to get semi-perimeter. Here we are provided with perimeter, so to get semi-perimeter we simply divide it by 2. 32 divided by 2, this 16 centimeter is our semi-perimeter, and we have to find third side because they just provide us two sides, 11 centimeter and 8 centimeter. So we find third side by perimeter formula. Side AB plus AC plus BC equals to 32, and where AB equals to 11, AC equals to 8 and BC will result in 13 centimeter. So we have S equals to 16, S minus A 8 centimeter, S minus B 5 centimeter and S minus C 3 centimeter. So here we write the formula of area and put the values over here. S value 16, S minus A 8 centimeter, S minus B 5 centimeter and S minus C 3 centimeter. Now what we have to do, we have to take under roots outside the under root. Means if some number can be under rooted into real number, we take it out. As 16 here is under root and in multiplication, so 16 under root 4 will come out,
and when we solve this all, so we will result in the answer 8 under root 3, 8 under root 30. So 8 under root 30 is our resultant answer. तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली हमें टू साइड्स और पेरीमीटर प्रोवाइडेड था, सो हमने पेरीमीटर की मदद से तीसरी साइड को निकाल लिया। तीसरी साइड को निकालने के बाद जो हमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए थी, डायमेंशंस चाहिए थी, उनको आपने निकाल कर जस्ट फार्मूले में अप्लाई किया। कोई थिक एंड फास्ट रूल नहीं और कोई ये फार्मूला डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल इजी स्टेप था और हमारा आंसर आ गया। 2-3 और एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल, sides of a triangular plot are in ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter, find its area। तो यहाँ पर क्या है कि एक हमारा ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। आप फिगर को वैसे एज्यूम कर सकते हैं, वैसे इसमें फिगर की कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। तो हमने लेट की सपोज द साइड्स इन मीटर्स आर 3x, 5x एंड 7x। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो x है वो वेरिएबल है, मतलब x की कोई भी एक कॉमन वैल्यू आएगी जब हम यहाँ पर फिल करेंगे तो वो 300 मीटर को सेटिस्फाई करेगी। तो इसलिए हमने उसको लेट किया 3x, 5x एंड 7x। देन वी नो दैट 3x प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 300। ये हमें पता ही है क्योंकि हमने इनको साइड्स ही लेट किया है और साइड्स का सम ही हमें 300 दिया हुआ है। तो आपने क्या लिखा, 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 300। Therefore 15x equals to 300 which gives us x equals to 20। मतलब x की वैल्यू 20 आ गई। अब 3x यानी कि 60, 5x 100 और मतलब ऐसे हमारे पास अकेली साइड की लेंथ आ गई जो हमारे पास पहले ओनली रेशो में थी, अब हमारे पास न्यूमेरिकल लेंथ आ गई। तो अब उसके बाद एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए सबसे इजी फार्मूला हाफ बेस हाइट, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ना तो हमें कोई 90 का एंगल प्रोवाइडेड है, ना ही साइड्स का कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। तो हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। ये रहा, ये हमारा पेरीमीटर 300 है, 300/2 150। और उसके बाद हमें सेमी पेरीमीटर में से साइड्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, अलग अलग आपको पता ही है। तो यहाँ पर 150 minus 60 which is our first side, 150 minus 100 which is our second side and 150 minus 140 which is our last side। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 100। और जैसे मैंने पिछले समय बताया कि अंडर रूट को बाहर निकालना वो हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से सीख लिया था, वो उसका ये आ गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस का 3rd पार्ट है वो दोबारा से देखें, उसमें इसको सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा वे समझाया हुआ है। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ एरिया फाइंड करने में ही नहीं, हमें किसी फिगर की हाइट भी ढूंढने में मदद करता है। अब वो हाइट कैसे मदद करता है, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसमें हाइट बड़ी आसानी से आ जाएगी क्योंकि उसका फॉर्मूला ही होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो तीनों साइड्स के अलग होने के कारण हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हमारे विच इज इक्वल्स टू एरिया। हमारे पास बेस तो है, हाफ भी है, हाइट हमें निकालनी है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एरिया चाहिए होगा। तो एरिया कहाँ से लाएंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है जिसकी मदद से हम अगर तीनों साइड्स डिफरेंट भी हो तो भी एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इसीलिए किया है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें और हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजीली और फास्टली कंप्लीट हो जाए। तो सेमी पेरीमीटर a + b + c/2, 5 + 8 + 7/2, 20/2, 10। तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 10, एरिया √10, 10 - 5 5, 10 - 8 2 एंड 10 - 7 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 10√3। अब जो हाइट है वो 3 डिफरेंट हाइट्स आएंगी। कैसे, जो हमारा बेस AB है, ये रहा AB, इसके ऊपर जो हाइट है उसकी, जैसे ये CM है C और ये पॉइंट M, तो ये CM है, इसकी हाइट लेंथ डिफरेंट आएगी। अगर आप B से एक यहाँ AC पर ड्रॉ करेंगे तो उसकी डिफरेंट आएगी, A से BC पर ड्रॉ करेंगे उसकी डिफरेंट आएगी। जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमने फाइंड करनी है हाइट,
विद रिस्पेक्ट टू बेस ए बी। इसका मतलब कि अगर बेस ए बी के ऊपर हाइट बनाई जाए वो कितनी आएगी। तो हमने वैसे ही हाइट, आपको पता ही है हाइट जो होती है वो 90 डिग्री के एंगल पर होती है, परपेंडिकुलर होती है, अल्टीट्यूड होती है। तो आपने लिखा एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस हाइट, एरिया हमें निकाल लिया 10√3 इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 विच इज अवर बेस, और यहाँ पर लिखा h मतलब हाइट। तो ये 2 है, ये यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20√3, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4√3 अवर हाइट। तो 4√3 हमारी हाइट आ गई। तो आज हमने बेसिकली क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड से। एक्चुअली क्या है ना, बच्चों को ये फार्मूला स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये फार्मूला बहुत ही इजी है। जब आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसकी मदद से कोई भी सम्स को बहुत ही जल्दी और अच्छे एक्यूरेट सोल्यूशन निकाल पाओगे। क्योंकि देखो यहाँ पर अंडर रूट्स में आंसर आ रहा है हमारे पास, नॉर्मली हमारे पास अंडर रूट्स में नहीं आता, तो ये हमें बिल्कुल अप्रॉक्स, बिल्कुल कंप्लीट वैल्यू बता रहा है। और हमने एरिया तो निकालना सीखा ही, एरिया के बाद हमने हाइट भी निकालनी सीख ली कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है उसकी हमने हाइट फाइंड करनी है तो हम हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया सिखाऊंगा हीरोन्स की मदद से ही। जो हीरोन्स था उसने क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड कर दिया। जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल के तो हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज की मदद से कर लिया, लेकिन अगर कोई क्वाड्रिलेटर आता है जिसकी चारों साइड्स डिफरेंट है और कोई भी प्रॉपर्टी आपने पहले नहीं पढ़ी, पहले नहीं मैच होती, तो उसका हम एरिया निकाल लेंगे हीरोन्स फार्मूला की मदद से। थैंक्स।